السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمز محبت کی قسط 88 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئے گا، اور آپ یقین کریں بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آپ کو لائک سرپرائز بھی ہے، ایک بہت آپ کو مطلب یہ بہت اوورآل بہت مزے کا ایپیسوڈ ہونے والا ہے۔ اس میں شوق بھی لگے گا آپ کو اس میں تکلیف بھی ہوگی، آپ کو اس میں خوشی بھی ہوگی، ہر چیز مطلب فل آف ایموشن والا یہ ایپیسوڈ ہے۔ اور اب دوسری بات یہ کہ پریویس ایپیسوڈ پر اتنا اچھا رسپانس دینے کے لیے شکریہ۔ ویوز اتنے اچھے نہیں ہیں، رسپانس آپ لوگوں کا اچھا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں فار می ویوز اتنے میٹر نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میٹر نہیں کرتے، بہت میٹر نہیں کرتے، لیکن آپ کا جو ریویو ہے، جو آپ ورڈس میں اپنی بات کرتے ہیں، آپ جو ایکسپریس کرتے ہیں اپنی فیلنگ ورڈس میں، وہ آپ کا لائکس وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اور آپ کو میں بہت بار پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک لائک پر یوٹیوب 10 لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ 400 450 لائک کر دیں، کمپلیٹ کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4500 لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچے گی۔ اس میں سے اگر 2000 1000 بھی دیکھیں گے، مان لیں 500 بھی دیکھیں گے، تو اس سے کچھ تو مجھے فائدہ ہوگا۔ صرف میں اتنا ہی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ باقی تو بہت بہت شکریہ پریویس ایپیسوڈ پر آپ نے جتنا اچھا رسپانس دیا، اس پر بھی ایسے ہی دیجیے گا۔ اور بہت زبردست ایپیسوڈ ہے، کوئی سین مس مت کرنا، میں پھر کہہ رہی ہوں۔ چلیں بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ انس کو ختم ہوئے 10 دن گزر چکے تھے، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حویلی کی گھڑیاں اسی دن رک گئی ہوں۔ نہ کہیں ہنسی تھی، نہ کسی کمرے سے باتوں کی آواز آتی تھی۔ ہر طرف ایک مردہ سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے پوری حویلی بھی اپنے ایک فرد کے ساتھ دفن ہو چکی ہو۔ انا اپنے کمرے میں کھڑکی کے قریب رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ کرسی آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کی نظریں چھت پر جمی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن دیکھ کچھ نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر کہیں بہت دور کھو چکی ہو۔ اس کے رخساروں پر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، کوئی سسکی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف خاموش آنسو جو اس کے گالوں کے قریب سے گزرتے ہوئے بالوں میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ 10 دن سے اس نے ڈھنگ سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ ضربی بھی، یسریٰ، جیران سب نے بہت کوشش کی، مگر وہ ہر بار صرف یہی کہتی بھوک نہیں ہے، اور پھر دوبارہ خاموش ہو جاتی۔ وہ اب بات بھی کم کرتی تھی، گھنٹوں اسی کرسی پر بیٹھی رہتی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ترس کی آڑی سے مزید توڑتی چلی جاتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے کے اندر کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر یادوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ گڑیا، ایک شوخ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ چونک کر پلٹی، اسے یوں لگا جیسے انس دوبارہ سے دروازے سے ٹیک لگائے حسب معمول مسکرا رہا ہو۔ کتنی دفعہ کہا ہے میرا پرفیوم یوز مت کیا کرو۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ میری ڈائری پڑھنا چھوڑ دیں، میں آپ کا پرفیوم یوز کرنا چھوڑ دوں گی، وہ 15 سالہ لڑکی ہنستے ہوئے بولی۔ انس نے کہا لگایا، ڈائری تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ تم میری بہن ہو، اور بہنوں کے راز جاننا بھائیوں کا پیدائشی حق ہوتا ہے، اور تمہاری ڈائری پڑھ کر ہی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ تم شاہ رخ خان کی کتنی بڑی فین ہو، کہ ڈائری میں اس کے برتھ ڈے کی وشز لکھتے ہوئے تم نے یہ لکھ دیا کہ اللہ کرے تمہیں میری نانی کی عمر لگ جائے۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ وہ لڑکی جلدی سے بولی، جھوٹی، میں نے خود پڑھا ہے، اور اب یہ بات میں سب کو بتاؤں گا۔ کہتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ لالا رک جائیں، آپ کو میری قسم، جو آپ نے کسی سے کچھ کہا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے دوڑی تھی، اور وہ پوری حویلی میں اسے شاہ رخ خان کے نام سے چھیڑتا پھر رہا تھا۔ اچانک یاد ختم ہو گئی۔ انا نے آنکھیں کھول دیں، سامنے کوئی نہیں تھا، کمرہ ویسا ہی خاموش تھا۔ اس نے
کانپتے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ لالا، اس کی آواز پر مشکل نکلی، آپ اب واقعی چلے گئے؟ خاموشی، ایسی خاموشی جس نے اس کے دل کو پھر سے چیر دیا۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ ایک اور یاد بجلی کی طرح ذہن میں ابھری۔ وہی آخری دن جب انس اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے پوچھا تھا، انا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں ایک اندیکھے دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ پلیز مجھے اس دلدل سے نکالو۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ پلیز مجھے بتاؤ، میرا ساتھ دو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا تھا، آپ میرے لالا ہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ پھر وہ اسے سب بتاتا چلا گیا تھا۔ وہ سب سن کر کتنی پریشان ہوئی تھی، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ان دونوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہو، اور واقعی وقت نکل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی نمی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آنا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ میں کیوں نہیں سمجھ سکی؟ کیوں وہ مجھ سے مدد مانگ رہے تھے اور میں نے ان کی آنکھوں میں چھپا خوف پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اگر اس دن میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، اگر انہیں جانے نہ دیتی تو شاید آج میرے لالا زندہ ہوتے۔ اس نے دونوں ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بھیج لیے۔ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے، مگر اسے درد محسوس نہ ہوا، کیونکہ اس وقت اس کے دل کا درد جسم کے ہر درد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ کھڑکی تک گئی، باہر حویلی کے لان میں نظر دوڑائی۔ وہی درخت، وہی روشنیاں، وہی فضا، مگر آج ہر چیز ادھوری تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ لالا، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے۔ میں آپ کی اچھی بہن نہیں بن سکی، میں وقت پر آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکی، میں آپ کو اندھیروں میں جانے سے نہیں روک پائی، بلکہ آپ کا ساتھ دیتی رہی۔ دوسروں کی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ آپ کے ہر غلط کام میں آپ کا ساتھ دیتی رہی۔ میں اچھی بہن نہیں بن پائی، اگر اچھی بہن ہوتی تو آپ کو غلط کام کرنے سے روکتی۔ یہ کہتے ہی اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی اور پہلی بار اپنی پوری طاقت سے چیخ کر روئی۔ اس کی وہ چیخ صرف کمرے کی دیواروں تک نہیں ٹکرائی، بلکہ پورے وجود کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ کمرے میں نہ کسی سے کیمپیں گونج رہی تھی۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے۔ وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر برسوں سے جمع ہونے والا ہر دکھ آج آنسو کی صورت میں بہا دینا چاہتی ہو۔ اسی لمحے دروازے پر بہت ہلکی سی دستک ہوئی، مگر انا نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اسے شاید سنائی ہی نہ دیا، یا شاید وہ سن کر بھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحے انتظار کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حبیبہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ کچھ دیر پہلے ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے حبیبہ بیگم خود اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ لیکن جیسے ان کی نظر انا پر پڑی، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ انا فرش پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں اس قدر سوجی ہوئی تھی کہ بمشکل کھل رہی تھی۔ حبیبہ بیگم کا دل کسی نے مٹھی میں کھینچ لیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آئیں، فرش پر اس کے برابر بیٹھ گئیں، کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انا، ان کی آواز رونے سے بھاری ہو چکی تھی، بیٹا کتنا روگی؟ انا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس طرح بیٹھی رہی۔ حبیبہ بیگم نے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیری۔ میری بچی، دیکھو، اس طرح خود کو ختم مت کرو۔ پھر انہوں نے نظر اٹھا کر سامنے
मेज़ पर रखी प्लेटों को देखा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना सब वैसे ही रखा था। इन्होंने एक गहरी सांस ली। दिल जैसे मज़ीद डूब गया। कल से कुछ नहीं खाया तुमने? क्यों अपनी माँ को तकलीफ़ दे रही हो? मेरा दिल तो वैसे ही दर्द से दर्दों से चूर है। ये कहते हुए इनकी आवाज़ टूट गई। अनन्या ने आहिस्ता से सर उठाया। पहली बार इसने अपनी माँ को गौर से देखा। सिर्फ 10 दिन में इनके बालों में जैसे कई सालों की सफ़ेदी उतर आई थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। चेहरा जर्द, होठ खुशक और आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख और रत जगह का ऐलान करती हुई। अना का दिल एक लम्हे को भर आया, मगर अगले ही लम्हे अनस का खून में लुथड़ा वजूद इसकी आंखों के सामने घूम गया। इसका दिल फिर सख्त हो गया। हबीबा बेगम ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया। वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। इन्होंने दोनों हथेलियों में से समेट लिया। चलो, इन्होंने धीरे से कहा। उठो, खाना खा लो, सिर्फ मेरी खातिर। उन्होंने इसे सहारा देकर उठाना चाहा, मगर अना ने उठने की बजाय इनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हबीबा बेगम ने हैरानी से इसे देखा। अना ने खामोशी से सामने रखी रॉकिंग चेयर की तरफ इशारा किया। बैठे। इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर इसमें अजीब सी संजीदगी थी। हबीबा बेगम खामोशी से कुर्सी पर बैठ गईं। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल सकूत छा गया। सिर्फ दीवार पर लगी खिड़की घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। आवाज़ दोनों के दरमियान एक ऐसा दर्द बैठा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं था। अना अपनी जगह से उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके सामने आकर बैठ गई। इसने काफ़ी देर तक अपनी माँ के चेहरे को देखा, फिर नज़रें झुका लीं। इसके लब हिले, मगर आवाज़ न निकली। हबीबा बेगम ने मोहब्बत से इसके गाल पर हाथ रखा। कुछ कहना चाहती हो? अना ने आंखें बंद कर लीं। एक आंसू पलकों से टूटकर इसकी गोद में गिर गया। फिर इसने धीरे से कहा, मोरे। हाँ बेटा, हबीबा बेगम ने फौरन जवाब दिया। अना ने गहरा सांस लिया। इसकी नज़र अब सीधे अपनी माँ की आंखों में थी। वो चंद लम्हे रुकी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हबीबा बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। पूछो, जो पूछना है पूछ लो। अना ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे अपने अंदर हिम्मत जमा कर रही हो। फिर इसने आहिस्ता मगर साफ लहजे में कहा, बुरे, आपको लगता है कि आपने हमारी अच्छी तरबियत की थी? ये सवाल सुनते ही हबीबा बेगम के चेहरे का रंग बदल गया। इनके होंठ हल्के से खुले रह गए। आंखों में हैरत, दुख और खौफ एक साथ उतर आया। साथ ही कमरे में एक ऐसी खामोशी उतर आई थी जिसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। हबीबा बेगम की आंखें अना के चेहरे पर जमी थीं। इनके दिल में एक अनजाना खौफ सर उठाने लगा था। अना ने अपनी माँ की आंखों में देखा। इनकी अपनी आंखें आंसू से भरी हुई थी, मगर लहजा गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। वो पुरसुकून लहजा जो अक्सर शदीद टूट फूट के बाद इंसान को नसीब होता है। मोरे, इसने धीरे से पुकारा। जी बेटा, हबीबा बेगम ने लड़ती हुई आवाज़ में जवाब दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो खामोश रही। अना ने फिर पूछा, क्या आप वाकई समझती हैं कि आपने हमारी अच्छी तरबियत की? हबीबा बेगम ने नज़रें चुराई। अना के होंठ काँप रहे थे। मैंने, वो मुश्किल बोल सकी, मैंने हमेशा तुम लोगों की भलाई चाही थी। अना के लबों पर एक बेजान से मुस्कुराहट आई। भलाई? इसने आहिस्ता से इनकी बात दोहराई। क्या वाकई? हबीबा बेगम ने पहली बार इसकी तरफ देखा। हाँ, हर माँ अपनी औलाद के लिए अच्छा ही चाहती है। अना ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं मोरे, हर माँ अच्छा चाहती ज़रूर है, लेकिन हर माँ अच्छा सिखाती नहीं। ये जुमला सुनकर हबीबा बेगम जैसे साकित रह गई। अना अपनी जगह से उठी, आहिस्ता आहिस्ता खिड़की तक गई। बाहर शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। इसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहना शुरू किया, आप जानती हैं, बचपन में जब लाला मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मैं रास्ते में इनका हाथ पकड़ कर जाती थी। मुझे लगता था मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। इसके होठ लरस गए, और वो वाकई अच्छे थे मोरे। वो बहुत अच्छे थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर कुछ बदलने लगा। वो मुड़ी। इसकी नज़र सीधे अपनी माँ पर थी, और वो तब्दीली बाहर से नहीं आई थी। वो तब्दीली कहकर वो चलने में रुकी, इस घर के अंदर से आई थी। हबीबा बेगम का दिल ज़ोर से धड़का। अना,
क्या कहना चाहती हो? इन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अना इनके करीब आई। हर कदम के साथ इसकी आवाज़ में कर बढ़ता जा रहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ भोरे कि आप अच्छी माँ नहीं थी। ये अल्फाज किसी तेज धार हथियार की तरह हबीबा बेगम के दिल में उतर गए। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अना, ऐसा मत कहो, मेरे दिल पर रहम करो। अना की आंखों में भी आंसू थे, मगर आज इसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। रहम? वो आहिस्ता से बोली। रहम तो आपने भी नहीं किया था मोरे, जब आप हमारे दिलों में नफरत के बीज बो रही थी। हबीबा बेगम ने बेयकीनी से सर हिलाया। मैंने कभी तुम्हें नफरत नहीं सिखाई। अना की आवाज़ पहली बार बुलंद हुई। सिखाई थी? आपने ही सिखाई थी। आपने ही हमें बताया था कि फलां ने हमारा हक छीन लिया। आपने ही हमें हर वक्त दूसरों से मुकाबला करना सिखाया। आपने ही लैला के दिल में ये एहसास डाला कि अगर वो हर कीमत पर जीतेगा नहीं तो हार जाएगा। आपने कभी ये नहीं सिखाया कि बाज़ हार इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। आपने कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा, किसी का हक मत मारना। आपने कभी ये नहीं सिखाया कि खून के रिश्तों से दगा नहीं करते। आपने हमें हमेशा यही कहा कि अपना हिस्सा ले लो, चाहे किसी का हिस्सा क्यों ना छिन जाए। आपने लाला को और मुझे गलत रास्ता दिखाया। वक्त के जनान से निकाह के बाद ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, और तुम्हारे नसीब में नहीं था। अल्लाह ने तुम्हारा नसीब कहीं और लिखा होगा। बल्कि आपने ये कहा कि इस औरत ने मेरा हक छीन लिया। कहाँ से छीना था इसने मेरा हक? वक्त पर तो मेरा कोई हक नहीं था। ऐसे ही आपने लाला के दिमाग में लालच डाला कि वो यूसरा से शादी कर लेंगे तो उनके हिस्से की सारी जायदाद इन्हें मिल जाएगी। आप इनके मासूम जहन में ये लालच डालती थी और इनके जहन से मोहब्बत निकल गई और उसकी जगह लालच ने ले ली। इसने कहा तो हबीबा बेगम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जी, मोहब्बत करते थे लाला ईश्वर से, बहुत करते थे, लेकिन आपकी खुद गर्जी ने इनके मासूम जहन से मोहब्बत निकाल कर लालच भर दिया। इसका अंजाम भी आपने देख लिया। मैं ये नहीं कहती कि हम सही थे। अल्लाह ने हमें भी शऊर दिया था। सही गलत को पहचानने की सलाहियत दी थी, लेकिन हम लालच में नहीं पहचान पाए। इस लालच में, इस नफ़रत में सबसे बड़ा खसारा किसके हाथ लगा? आपके और हमारे। आपका बाबा का बेटा चला गया, हम बहनों का भाई चला गया। आप माने या मत माने, लेकिन इस सब के जिम्मेदार आप हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। हबीबा बेगम का सर झुक गया। इनकी सांस बेतरतीब हो रही थी। अना की आवाज़ अब रोने से भर चुकी थी। लाला पूरे पैदा नहीं हुए थे। वो बहुत नरम दिल थे। मुझे याद है, जब मैं बचपन में गिर जाती थी तो वो खुद रोने लगते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? वो इतने सख्त क्यों हो गए? इनके दिल में इतनी नफरत क्यों भर गई? इसने अपने सीने पर हाथ रखा। क्योंकि हमने इन्हें वक्त पर नहीं रोका, और सबसे पहले आपने नहीं रोका। वो टूट कर रोने लगी। आज आपने अपना बेटा खो दिया और मैंने अपना लाला। हम दोनों खाली हो गए मोरे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि लाला मर गए। हबीबा बेगम ने नम आंखों से उसे देखा। अना ने लरजते होठों से जवाब दिया। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जिंदा होते हुए भी अंदर से मर चुके थे और हमें खबर ही नहीं हुई। ये सुनकर हबीबा बेगम बेख्तियार चीख मार कर रो पड़ी। बस कर दो अना, खुदा के लिए बस कर दो। मत मत दिखाओ मुझे वो आईना जिसमें मुझे अपना आप खूबसूरत नजर आए। मैं अपना ये रूप नहीं देख सकती। मैं पहले ही मर चुकी हूँ। अपने दोनों हाथों में चेहरा ढाँप कर बिलक बिलक कर रोने लगी। और अना खड़ी खड़ी अपनी माँ को देखती रही। इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। हर बार सच बोलने से दिल हल्का नहीं होता, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बोझल हो जाता है। जैसे अपनी माँ को रोता देखकर अना का हो रहा था। इस इसे अपनी माँ लेकिन इसे अपनी माँ को हकीकत का आईना दिखाना था, जो वो दिखा चुकी थी। लेकिन अफसोस, इसे बहुत देर हो गई थी।
1.5 महीने बाद अनस की मौत को पूरा 1.5 महीना गुजर चुका था। इन 45 दिनों में सब कुछ बदल गया। वक्त दिन रात एक किए हुए था। इसने खुद से वादा किया था कि वो अनस के कातिल को जल्द से जल्द पकड़कर इसे सख्त से सख्त सजा देगा। इसी वादे ने इसे पिछले 1.5 महीने से एक लम्हा भी चैन से बैठने नहीं दिया था। इसने केस का एक एक कागज़ दोबारा पढ़ा, हर सबूत को बार बार परखा। बिल्डर से कई मरतबा पूछगिछ की गई, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला। वो सिर्फ फैक्ट्री के सौदे तक महदूद था। अनस के कत्ल से इसका कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। शूटर को भी दोबारा रिमांड पर लिया गया। वक्त ने इससे घंटों सवाल किए, इसकी बातों में तसाद तलाश किया, मगर हर बार वही जवाब मिला, मुझे अनस के कत्ल के बारे में कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वक्त को मानना पड़ा कि न बिल्डर कातिल था, न ही शूटर। इस शाम वक्त अपने कैबिन में अकेला बैठा था। इसके सामने केस की तमाम फाइलें खुली हुई थी। टेबल पर तस्वीरें, फ़ोन रिकॉर्ड, चंद रसीदें और कई नोट्स बिखरे पड़े थे। वो मुसलसल एक के बाद एक कागज़ देख रहा था। इसकी नज़र हर छोटी से छोटी चीज़ पर थी। इसी दौरान इसकी नज़र एक मामूली सी चीज़ पर जाकर रुकी, एक ऐसा सबूत जिससे शायद कोई दूसरा शख्स नज़रअंदाज कर देता। वक्त ने फ़ौरन दूसरी फाइल खोली, फिर एक और। इसने दोनों कागजात साथ रखे, चंद लम्हों तक खामोशी से इन्हें देखता रहा। फिर इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसने कुर्सी की पुश से टेक लगा दी। एक गहरा सांस लिया तो इसके लबों से बेख्तियार निकला, बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इसने दोबारा इस सबूत को देखा। इस एक मामूली सी कड़ी ने पूरी तस्वीर बदल दी थी। अब कोई नाम सामने नहीं आया था, किसी रिपोर्ट में कत्ल नहीं लिखा था, मगर बख्श जानता था ये सबूत सिर्फ एक ही। अभी अब कोई नाम सामने नहीं आया था, कोई रिपोर्ट में कत्ल नहीं लिखा था, कातिल नहीं लिखा था, मगर बख्श जानता था ये सबूत सिर्फ एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा था, और वो इशारा गलत नहीं हो सकता था। इसने आंखें बंद कर ली। दिल ने जैसे इस हकीकत को मानने से इनकार कर दिया। नहीं, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, काश मैं गलत हूँ। काफ़ी देर तक वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। फिर इसने तमाम कागजात एक तरतीब से जमा किए, फाइल बंद की और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। घर आकर भी वो बेचैन रहा। इसकी बेचैनी इसके एक एक अंदाज से झलक रही थी। जनान इसको इतना परेशान देखकर खुद भी परेशान हो रही थी। इसकी डिलीवरी के दिन करीब थे, और ऐसे में इसका परेशान होना, टेंशन लेना इसके और इसके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता था। इसलिए वक्त कोशिश करता था कि उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहे, लेकिन आज जो एक छोटा सा सबूत, एक कड़ी इसके हाथ लगी है, इसके बाद इसका नॉर्मल रहना नामुमकिन था। जनान की हालत ऐसी ना होती तो शायद वो इसे अकेला छोड़कर खुद दूसरे कमरे में चला जाता, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस तरह कैफियत में इधर से उधर टहलते हुए इसकी नज़र बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी जनान पर पड़ी। इसके मासूम चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वक्त के कदम इसका चेहरा देखकर रुक गए। इसने तवील सांस खींचा और इसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ? इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेते हुए बड़ी मोहब्बत से पूछा। तुम बताओ, तुमको क्या हुआ? तुम क्यों इतना परेशान हो रहा है? जना ने अपनी ठंडी हथेली इसके गाल पर रखते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, वक्त ने बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा। खान, तुम झूठ तुमको झूठ बोलना नहीं आता, तो तुम ऐसा कोशिश भी मत करो। इसने कहा तो वक्त ने नज़रों के साथ साथ चेहरा भी झुका लिया। बताओ बताओ, हमको क्या परेशानी है? इसने फिर कहा। जनान, तुम इस समय मत पढ़ो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता तुम्हें मेरे बच्चे को कुछ हो। वक्त ने इसकी उभरते वजूद पर नरमी और मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा। जनान कुछ नहीं बोली, बस सर को खम देकर रह गई। वक्त ने इसकी आंखों में देखा, फिर नरमी से इसे खुद से लगा लिया। इसे खुद एहसास था कि इस वक्त जनान को
जिस तवज्जो, जिस मोहब्बत की ज़रूरत है वो इसे नहीं दे पा रहा, बहुत चाहने के बावजूद भी नहीं दे पा रहा। और इस वक्त में जनान ने भी बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। वो अपाक से बिल्कुल ज़िद नहीं कर रही थी, बल्कि इसकी पोजीशन को समझते इस कड़े वक्त में भी इस कड़े वक्त में इस कड़े वक्त में इसके साथ खड़ी थी। ऐसे प्यार करके पकने आहिस्ता से लिटाया और खुद इसके पास लेटकर इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। थोड़ी देर में वो नींद की वादी में उतर गई। इसके सोने के बाद वक्त फिर इन्हीं सोचों में गुम हो गया। अगली सुबह रहमान हस्बे मामूल एक रिपोर्ट लेकर इसके कैबिन में दाखिल हुआ। सर, ये आखिरी अपडेट। वक्त ने इसकी बात दरमियान में काट दी। रहमान रहमान सीधा होकर खड़ा हो गया। जी सर। वक्त ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, अनस खान कत्ल केस आज से बंद कर दिया जाए। रहमान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या? मैंने कहा केस बंद कर दो। रहमान को अपनी समातों पर यकीन न आया। लेकिन सर, हम तो कातिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ चंद कदम बाकी हैं। वक्त ने नजरें खिड़की से बाहर जमा दी। मैंने जितना कहा उतना सुनो, मजीद कोई तफ्तीश नहीं होगी। रहमान अब खुद को रोक ना सका। सर, आखिर क्यों? पिछले 1.5 महीने से आपने एक लम्हा आराम नहीं किया। आप कह रहे थे कातिल को कानून के सामने लाकर इसे सज़ा दिलाकर ही दम लेंगे। फिर अचानक। वक्त ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी थकन थी। रहमान, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ हमें इंसाफ चाहकर भी नहीं चाहिए होता। रहमान उलझ गया। सर, मैं समझा नहीं। वक्त ने मुख्तसर लहजे में जवाब दिया। मेरी फैमिली पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है। अब वो किसी नए सदमे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए वो सब चाहते हैं कि ये केस यहीं ख़त्म हो जाए और ये हम सब का मुश्तरका फ़ैसला है। इतना कहकर इसने केस की सारी फाइलें उठाई और कैबिन से बाहर निकल गया। रहमान वहीं खड़ा रह गया। इसकी पेशानी पर गहरी शिकनें उभर आई थी। बाहर बैठे दूसरे अफसर भी एक दूसरे को देखने लगे। वो भी वक्त की सारी बात सुन चुके थे। किसी के ज़हन में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने वक्त खान जैसे उसूल पसंद अफसर को अपने ही भाई के कत्ल का केस बंद करने पर मजबूर कर दिया। वक्त ने केस बंद कर दिया था, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई थी। यासर के पूछने पर इसने इतना ही कहा था कि वो कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी एविडेंस इनके हाथ नहीं लगा जिससे वो कातिल तक पहुंच जाए। यासर ने इसकी बात मान ली और इसके साथ साथ सब घर वालों ने भी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिल ऐसे थे जिनकी घड़ियां अभी तक इसी दिन पर रुकी हुई थी। इकरा भी इन्हीं लोगों में से एक थी। घर वालों के लाख इसरार पर इसने कॉलेज आना तो शुरू कर दिया था, मगर वो पहले वाली इकरा हरगिज़ नहीं रही थी। अब वो ना दोस्तों के साथ हंसती थी, न क्लास में सवाल पूछती थी, न कैंटीन जाती थी। वो बस खामोशी से आती, अपनी क्लास अटेंड करती और छुट्टी होते ही घर वापस चली जाती। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी से इसका ताल्लुक सिर्फ सांस लेने तक रह गया हो। दूसरी तरफ फाइक इसके लिए बहुत परेशान था। इसने कई बार इकरा को फ़ोन करने का सोचा, इससे मिलने का सोचा, लेकिन फिर कुछ सोच कर रह जाता। लेकिन आज अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो इसके कॉलेज आ गया। इस वक्त तो अपनी गाड़ी में बैठा कॉलेज के मेन गेट से कुछ फासले पर था। खिड़की का शीशा आधा खुला हुआ था। हल्की हवा अंदर आ रही थी, मगर इसके दिल की घुटन कम नहीं हो रही थी। इसने कई बार खुद से कहा था मुझे नहीं आना चाहिए, फिर हर बार दिल ने एक ही जवाब दिया, सिर्फ एक बार देख लो वो कैसी है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इसे यहाँ कौन खींच लाया था, रहम, फिक्र या वो एहसास जिसे वो खुद से भी तस्लीम नहीं कर पा रहा था। इसने एक गहरी सांस ली और नजरें गेट पर जमा दी। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे। फाइक की नज़रें सिर्फ एक चेहरा तलाश कर रही थी। वो बेख्तियार हर आने वाली लड़की को देखता, फिर अगले ही लम्हे निगाहें हटा लेता। अचानक इसकी नज़रें एक मानूस वजूद पर जाकर रुक गई। इकरा। फाइक के फाइक एक लम्हे को साकित हो गया। ये इसे इकरा तो नहीं, कहीं से भी नहीं लग रही थी।
چہرے پر اتنا کرب، اتنی تکلیف تھی کہ دور سے ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ آنکھیں ویران اور بنجر تھیں۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں طاقت ہی باقی نہ رہی ہو۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ چہرے کی گلابی رنگت کہیں کھو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے نمایاں تھے، اور ان آنکھوں میں وہ چمک جو کبھی ہر وقت موجود رہتی تھی آج مکمل بجھ چکی تھی۔ فائق کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ اقرا اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس نے خود کو کیا بنا لیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ بھائی کی موت انسان کو توڑ دیتی ہے، لیکن یہ منظر اس کی تصویر سے کہیں زیادہ دردناک تھا، تصور سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گیٹ سے باہر نکلی، مگر اس کی نظر زمین پر جمی ہوئی تھی، جیسے اسے اپنے ارد گرد کی دنیا سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ نہ کسی سے ملی، نہ کسی دوست کو الوداع کہا، بس خاموشی سے چلتی رہی۔ فائق بے اختیار گاڑی سے اتر آیا۔ اس کے قدم خود بخود اقرا کی طرف اٹھنے لگے، مگر وہ چند قدم دور جا کر رک گیا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اقرا اب اس کے بالکل قریب سے گزرنے والی تھی۔ فائق کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی۔ اسے لگا وہ خود اسے دیکھ لے گی، لیکن اقرا اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سر نہیں اٹھایا۔ فائق نے مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ وہی لڑکی جو کبھی اسے دیکھتے ہی بحث شروع کر دیتی تھی، آج اس کے سامنے سے اس طرح گزر گئی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اقرا! اس نے دھیرے سے پکارا۔ اس کی آواز بے حد نرم تھی، مگر اقرا کے قدم نہیں رکے۔ وہ اسی رفتار سے چلتی رہی۔ فائق نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر تیز قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اقرا اچانک سامنے کسی کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ آپ؟ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ یہاں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی الجھن بھی۔ فائق نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کیا وہ صرف روتی نہیں رہی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ اس نے اپنے دل کی بے چینی کو دباتے ہوئے دھیرے سے کہا، کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اقرا نے جواب دینے کی بجائے پھر پوچھا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، اس نے بنا کسی تمہید کے کہا۔ یہ سنتے ہی اقرا کی پلکیں بے اختیار جھپ گئیں۔ اسے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر فائق کو دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، مجھ سے؟ فائق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، تم سے۔ فائق کا جواب مختصر تھا، مگر اس کی نگاہیں مسلسل اقرا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی زندگی تلاش کر رہا تھا، مگر وہاں صرف تھکن تھی، اداسی تھی، اور ایک ایسا خلا جسے شاید کبھی کوئی بھر نہ سکے۔ اقرا نے نظر جھکا لی۔ کوئی کام تھا؟ اس نے بے رنگ لہجے میں پوچھا۔ فائق نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، تم سے بات کرنی تھی۔ مجھ سے؟ ہاں۔ کس بارے میں؟ فائق ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ یہیں سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر ساری باتیں کرنی ہیں؟ اقرا خاموش رہی۔ چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے نہایت نرمی سے کہا۔ اقرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور انتظار کر رہے ہوں گے، اور بابا بھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ شاید وہ کسی سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی۔ فائق نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ اقرا! وہ چونک کر رک گئی۔ اس نے فوراً اپنی کلائی کی طرف دیکھا، پھر فائق کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ؟ اس کی آواز میں ہلکی سی ناراضگی کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ فائق کو جیسے اپنی حرکت کا اسی لمحے احساس ہوا۔ اس نے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی۔ سوری، اس نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں واقعی ندامت تھی۔ اقرا نے اپنی کلائی کو آہستہ سے سہلایا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ فائق نے ایک گہرا سانس لی۔ فائق نے ایک گہری سانس لی، پھر 2 قدم چل کر دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس بار اس نے اسے چھوا نہیں، صرف اپنا ایک ہاتھ اس کے سامنے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ اقرا نے تھکے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا،
अब क्या है? इसने बेहद धीमे लहजे में पूछा। फाइक ने शिद्दत से महसूस किया कि वो इकरा नहीं थी जो हर बात पर इससे उलझ जाती थी। ये लड़की तो जैसे लड़ने की ताकत भी खो चुकी थी। इसके दिल में एक और टीस उठी। इसने बहुत नर्म आवाज़ में कहा, मुझे वाकई तुमसे बात करनी है, सिर्फ आधा घंटा। इसके बाद मैं खुद तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। इकरा ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से ज़मीन को देखती रही। फाइक ने आहिस्ता से फिर कहा, प्लीज़, मैं जानता हूँ शायद ये वक्त मुनासिब ना हो, शायद तुम किसी से बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आज तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी लगा। इसके लहजे में जिद नहीं थी, सिर्फ खलूस था। इकरा ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ हमदर्दी थी, रहम नहीं। और शायद यही फ़र्क था जिसने इसे खामोश कर दिया। काफ़ी देर बाद इसने धीरे से कहा, मेरे ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। भाई के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी किरण उभरी। इन्हें फ़ोन कर दो, कह दो आधा घंटा इंतज़ार करें। इकरा चलने में सोचती रही, फिर इसने अपना फ़ोन निकाला, कांपती उंगलियों से नंबर मिलाया। मुझे थोड़ी देर लग जाएगी, आप प्लीज़ पार्किंग में ही इंतज़ार कीजिए। फ़ोन बंद करते हुए इसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मध्यम थी। बाइक ने सुकून का सांस लिया। शुक्रिया, वो आहिस्ता से बोला। इकरा ने जवाब नहीं दिया। चंदले में खामोशी रही। फिर फाइक ने कहा, करीब ही एक ओपन रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। इकरा ने फ़ौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं, मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊँगी। क्यों? फाइक ने नरमी से पूछा। इकरा ने नज़र झुका ली। दिल नहीं चाह रहा, लोगों के दरमियान बैठने का भी नहीं। ये कहते हुए इसकी आवाज़ भर आ गई। फाइक ने फ़ौरन बात बदल दी। ठीक है, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे हम वहीं चलते हैं। इकरा ने सामने नज़र उठाई। कॉलेज से कुछ फासले पर एक छोटा सा पार्क था। दोपहर का वक्त था, वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं थे। इसने आहिस्ता से इसी तरफ इशारा किया। वहाँ? फाइक ने इसकी बताई हुई सिमत देखा, फिर मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। चलो। दोनों खामोश कदमों से पार्क की तरफ चल दिए। पार्क की फ़ज़ा गैर मामूली हद तक खामोश थी। हल्की हल्की हवा दरख्तों की शाखों को छूकर गुजर रही थी। दोनों एक ही बेंच पर बैठे थे, मगर इनके दरमियान एक ऐसी खामोशी फैलती जिसे तोड़ना आसान नहीं था। पाइक ने एक लम्हे को इकरा की तरफ देखा। इसकी हालत उसके दिल को अजीब सी तकलीफ दे रही थी। इसने आहिस्ता से गला साफ किया। इकरा। इकरा ने नज़र नहीं उठाई, बस धीरे से जी कहा। फाइक चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर धीमी आवाज़ में बोला, मुझे नस्ल के इंतकाल का बहुत अफसोस है। ये एक सादा सा जुमला था, मगर जैसे किसी ने इकरा के दिल के सबसे नाजुक जख्म पर हाथ रख दिया हो। इसकी पलकें लरज़ी। इसकी मुट्ठी मज़ीद इसकी मुट्ठी मज़ीद भिज गई। चंदा में वो खामोश बैठी रही। फिर इसने बहुत आहिस्ता से सर उठाया। इसकी सुर्ख आँखें सीधी फाइक पर जम गई। आपको? इसकी आवाज़ काँप रही थी। मेरे लाले की मौत का अफसोस क्यों है? फाइक ने चौंक कर से देखा। इकरा की आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर इन आंसू के पीछे गर्व, गुस्सा और बेबसी सब इकट्ठा थे। आपको तो खुश होना चाहिए। वो तल्ख हंसी हंसी, ऐसी हंसी जिसमें खुशी का एक ज़र्रा भी नहीं था। फाइक हैरत से इसे देखने लगा। सही कह रही हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। आखिर मेरे लाला ने आपके भाई के साथ क्या क्या किया था, ये मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। इसकी आवाज़ भारी होने लगी। वो तो अली भाई को मारना चाहते थे। इन्होंने आप सबको तकलीफ दी। वो गलत थे, बहुत गलत थे। हर जुमले के साथ इसकी आवाज़ टूटती जा रही थी। फिर आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? इसने नम आंखों से फाइक को देखा। बड़े बुरे लोगों के मरने पर कोई अफसोस नहीं करता, है ना? फिर आप क्यों कर रहे हैं? बोलें, क्यों? फाइक ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। इकरा। नहीं। इसने फ़ौरन इसकी बात काट दी। आज मुझे बोलने दें, मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करने दें। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। सब कहते हैं तुम्हारा लाला मुजरिम था। सब कहते हैं इस अपने किए की सज़ा मिली। और शायद वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुई। शायद वो सब ठीक कहते हों। ये कहते हुए उसका गला बुरी तरह भर आया। लेकिन इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा, जैसे आंसू रोकना चाहती हूँ। वो मेरे लाला भी तो थे। मैं मुझुम को बुरा कह सकती हूँ, इनसे नफरत कर सकती हूँ, लेकिन अपने लाला से नहीं। वो
जैसे भी थे मेरे नाना थे, मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे हर रात लगता है अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो अंदर आकर कहेंगे, ओए छोटी। फिर याद आता है वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फाइक ने पूरी गुफ्तगू के दौरान एक बार भी इसे नहीं टोका। इसका अपना गला भी भारी हो चुका था। वो यहाँ इसको तकलीफ़ देने के मकसद से तो नहीं आया था। वो तो यहाँ इसे बताने आया था कि इसे वाकई अनस की मौत का अफसोस है। और जहाँ तक बात रही इसके अरीक पर हमला करने की, तो वो सब लोग इसे माफ़ कर चुके हैं। इनके दिल में अनस के लिए कोई किना, कोई बुग़्ज़ नहीं है। वो खामोशी से सोचता रहा। फिर चंद लम्हे बाद इसने बहुत धीरे से कहा, इकरा, गलती इंसान को गुनहगार बना सकती हैं, लेकिन किसी बहन के दिल से अपने भाई की जगह नहीं छीन सकती। तुम्हारे लिए वो हमेशा तुम्हारे लाला रहेंगे, और ये एहसास ना गलत है ना कमज़ोरी। ये सुनते इकरा की हिचकियाँ बन गई। वो दोबारा सर झुकाकर रोने लगी। प्लीज़ मत रो, मैं यहाँ तुम्हें रुलाने नहीं आया। और अगर तुम्हें लगता है मुझे मेरे घर में किसी को भी अनस की मौत की खुशी है, तो ये तुम गलत सोचती हो। हमें बहुत अफसोस है और हम सब उसे माफ़ कर चुके हैं। प्लीज़ तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो। फाइक ने कहा तो उसने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। सच में इसके देखने पर फाइक ने कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ मुझे ये बताने? इसने पूछा। फाइक का दिल कह के कह दे, ये तो बहाना है। असल में तो मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने आया था, लेकिन वह ये सब सोच सका। उसने बिना कोई जवाब दे सर झुका लिया। चलने में इकरा इसके झुके सर को देखते रही, फिर खामोशी से बेंच से उठ गई। फाइक ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। अपना ख्याल रखना। फिर उठते हुए आहिस्ता से कहा। इसके अंदाज में, इसके लहजे में कुछ नया था, कुछ अनोखा, जिसे वो फिलहाल समझ नहीं पाई। इसने हुंकारा भरने पर इत्तेफाक किया और पलटकर जाने लगी कि फाइक की आवाज़ ने फिर इसके कदम रोक लिए। एक इजाज़त चाहता हूँ। कैसी इजाज़त? इसने पूछा। क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? फाइक ने पूछा तो वो सवाली नज़रों से उसे देखने लगी। सिर्फ हमारी खैरियत पूछ सिर्फ तुम्हारी सॉरी सिर्फ तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। मैं तो बस ठीक है। वो अपनी बात मुकम्मल करता इससे पहले वो बोल पड़ी। इसकी इजाज़त देने पर फाइक के होठों पर एकदम मुस्कुराहट दौड़ गई। थैंक यू सो मच, इसने मुस्कुराकर कहा। इकरा इसे देखते रही, लेकिन जवाब में वो मुस्कुरा भी न सकी। सर झुकाया और पलटकर पार्क से निकल गई। फाइक भी उसके पीछे पीछे पार्क से निकल गया। पार्क से निकलकर वो गाड़ी में आकर बैठा और दोनों हाथों में स्टीयरिंग थामकर सीट के बुर्ज से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता इकरा। तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ें अपने दामन में समेट लूँ और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूँ। तुम्हारे होठों पर मुस्कान बिखेर दूँ। तुम्हारी आंखों से वीरानी छीन कर वहाँ चमक भर दूँ। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूँ कि तुम हर गम, हर तकलीफ़ भूल जाओ। वो आंखें बंद करके इकरा के तसव्वुर से कह रहा था, लेकिन मोहब्बत का नाम आते ही इसने आंखें खोल दी। मोहब्बत? वो ज़हरीला पड़ाया। हाँ, मोहब्बत ही तो करते हो इससे। तभी तो सिर्फ इसे देखने की खातिर इतनी दूर चले आए। दिल ने सरगोशी की, और इस बार वो अपने दिल की इस बात से मुकरा नहीं, बल्कि मुस्कुरा दिया। हाँ, मुझे इससे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। इसने खुद से एतराफ़ किया और दिल खोल कर मुस्कुराया जारी है। अच्छा, आखिर में थोड़ी सी, मतलब मैंने प्रूफ रीडिंग में ये थोड़ी सी इधर उधर हो गया है, वो मैं ठीक कर लूँगी। ठीक है, चलें जी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, जैसे प्रीवियस एपिसोड पर दिया था। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। कमेंट का मतलब कमेंट होता है, देखिए, दिल, स्माइली और ये इमोजी मत भेजा करें। कमेंट
जब मैं इतना लंबा लिख सकती हूँ तो चंद हुर्फ आप भी लिख सकते हैं। प्लीज़ सब कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपना बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे मुझे, जैसे आपने प्रीवियस एपिसोड पर दिया है। और बस अपनों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।